Hi everyone, welcome back. Welcome back in our series of sessions that we are making for our UPSC Civil Services personality test. Today we are going to discuss this article. This is not an article, this is one of the videos that had come in print on the YouTube channel of Print. This deals with the overall macroeconomic issues or the framework that are going on across the world, and what could be the implications of them on India as a nation and as an economy. So all the credits for this information goes to the Print. ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा सा ही है. Let's try to complete this क्योंकि ये points काफ़ी अच्छे हैं, मतलब important है. The first point, it was started from the inflation in US is rising. The inflation that was predicted earlier, I think it was, देख लेते हैं एक बार नीचे जाके, I think 2.9. हाँ, the inflation that was expected was 2.9%, but the actual inflation is 3.1%. So what is happening here is, since the inflation in US is high, so therefore even the interest rates of the banks, they are also high. Interest rates are high. That ensures that people who wants to get loans from the bank, the loans would be costly for them. So when the inflation is high, the interest rates are kept high so as to ensure, so as to contain inflation, so as to take out money from the market, and so as to disincentivize people from taking loans. And it also acts as an incentive for the people to deposit more money into the bank accounts. Since the interest rate is high, they will get more interest on whatever they have deposited. So this is how it works. So the impact of this is, now we'll start from here. Since the US inflation is high, therefore the interest rates in US banks are also high. So what is happening due to this? This is resulting in the flight of capital. For example, from India back to United States, because the United States market are more attractive in this case. So what kind of capital usually flies? There are two kinds of capital. One is FDI and other is FII. Since FII is more volatile in nature, therefore the flight of FII is more as compared to FDI. तो पहली चीज़ ये होगी. Therefore the impact on FII is more. अब आगे देखते हैं. US inflation, we saw that it is 3.1%. Interest rate would remain higher. This also we saw. और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि when inflation rates are high, interest rates are high, then the kind of impact that it has on bond yield is that even the yield of the bond is high. So therefore this also makes the bonds in the United States, issued in the United States, also more attractive. अब आगे देखते हैं. नवंबर दिसंबर के केस में इंडिया में FII जो था, FII वर नेट इन्वेस्टर्स इन इंडिया, बट जनवरी के केस में FII वर नेट सेलर्स, मतलब FII बेच रहा था और US अपने वापस जा रहे थे. ठीक है, अब आगे देखते हैं. ये यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे क्या इन्फ्लेशन हमने US में देखा है कि एक्सपेक्टेड 2.9% था, बट जो एक्चुअल में आया 3.1%. तो अब क्या हो रहा है? अब देखो यहाँ पे ना डिफरेंस 2.9 और 3.1 के बीच में, इट सीम्स दैट देयर इज़ अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, 0.2% का डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू इंडिया. जैसे इंडिया के केस में क्या है, द करंट इन्फ्लेशन, द करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना एक्सपेक्ट कर रखा है यार हमने. एक तो फिस्कल डेफिसिट हमने किया था, दैट इज़ 5.8%. इन्फ्लेशन अपना अभी एट प्रेजेंट शायद 6% के अराउंड ही है. फूड इन्फ्लेशन तो अपना 9% के अराउंड था. ओवरऑल अपना 6% के अराउंड है, बट देखना पड़ेगा मुझे एक बार. अब ये जो डेवलप नेशंस होते हैं ना, डेवलप नेशंस में क्या है, जनरली ग्रोथ रेट भी कम होती है, इन्फ्लेशन वगैरह भी कम होती है. तो यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे वेरिएशन में भी, मतलब देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज दैट द इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस विल बी हायर. ठीक है. तो इसलिए इट मेक्स इवन दीज शॉर्ट चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज नेशंस. और इन देशों में क्या होता है, ड्यू टू द बेस इफेक्ट, इनकी जो GDP है वो है ही इतनी बड़ी कि उस पर जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ बहुत कम होती है, 2% की, 1% की, 3% की, 0% की भी हो सकती है, इट डिपेंड्स. और US में क्या हुआ है कि ओवरऑल व्हेन वी सी, देन द interest rates have already been raised by 500 basis points, and therefore now it is almost certain, seeing the macroeconomic conditions, that in some time these interest rates are going to fall.
सॉरी, आगे CME का एक फेड वॉच टूल आता है. इट kinds of helps the investors in analyzing that what could be the interest rates in the US economy in future, or what would be the fluctuations in the interest rates. आगे देखते हैं यूके के केस में अब क्या बता रहे हैं. अब तक तो हमने यूएस देखा, अब उसके अलावा क्या है. इकोनॉमीज सच एज यूनाइटेड किंगडम एंड जर्मनी, दे आर ऑल्सो अंडरगोइंग रिसेशन. अब रिसेशन का मतलब क्या होता है? रिसेशन का मतलब ये होता है कि देयर इज नेगेटिव ग्रोथ इन इकोनॉमी इन 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स. दैट इज इम्पॉर्टेंट. देन अ नेशन इज अज्यूम टू बी इन अ रिसेशन. अब हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. यूएस के केस में हमने इम्पैक्ट देख लिया. देखो ब्रॉडर स्केल में जब हम इम्पैक्ट देखेंगे ना, तो सारे देशों जो पूरे वर्ल्ड का इम्पैक्ट है, या फिर स्पेसिफिकली जो डेवलप नेशंस का इम्पैक्ट है जो इंडिया पे वो रहेगा, वो क्या रहेगा? तो इम्पैक्ट रहेगा, पहला तो अपना फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो सकता है, दैट इज़ इम्पैक्ट इज़ ऑन इन्वेस्टमेंट. सेकेंड इम्पैक्ट इज़ ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, सिंस द इकोनॉमी अक्रॉस द नेशन दे आर इंटरकनेक्टेड. ये 2 हो गया. तीसरा इसके अलावा क्या हो सकता है? फिर इस चीज़ को अगर हम स्पेसिफिकली डिवाइड कर दे तो जैसे इंडिया का हैवी डिपेंडेंस है ऑन ऑयल हो गया. ऑयल के अलावा जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया. फॉर एग्जांपल जब हम चाइना की इकोनॉमी देखेंगे तो वी आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, सिलिकॉन चिप्स एट्सेट्रा. ठीक है, तो वो इम्पैक्ट होता है. इसके अलावा फिर मूवमेंट ऑफ पीपल, ये सब आपका इम्पैक्ट रहेगा ही. तो आगे देखते हैं यूके के केस में अभी क्या बता रहा है. whatever that is happening in international nations, other nations, that has a very macro impact on India as a nation. तो ये जो रिस्क पोजेस करते हैं इनको कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर रिस्क, बिकॉज दीज रिस्क आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है? इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स वुड मेनली बी इम्पैक्टेड एंड मेजर मार्केट, बिकॉज दीज नेशंस आर मेजर मार्केट्स फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स. ठीक है, और ऑलरेडी इंडियन एक्सपोर्ट्स आर इन कॉन्ट्रैक्शन जोन. दिस वाज ड्यू टू, एक तो आपका कोविड आ गया, उसके बाद आपका रशिया यूक्रेन वॉर आ गया, अब आपका इज़राइल पैलेस्टीन वॉर आ गया, इसके अलावा आपका जो रेड सी पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये आ गया, इसके अलावा आपके ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी हाई रहे हैं, है कि नहीं. तो ये मेन रीजंस रहे हैं. आगे रेड सी का चैलेंज देख लेते हैं. अब रेड सी में क्या चैलेंज है? रेड सी में ये चैलेंज हो रहा है कि, पेन चेंज कर लेते हैं. रेड सी में ये चैलेंज हो रहा है कि हाउ द रिबल्स इन यमन दे आर अटैकिंग ships in the Red Sea region in protest of USA's and other nations inaction in case of Israel Palestine conflict. ठीक है, इसराइल गाज़ा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो सब. तो ये है. अब मेजर इम्पैक्ट इंडिया के केस में क्या है इसका? पहला तो ये है कि भैया जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है रेड सी से बहुत ज़्यादा जाता है अपना. फॉर एग्जांपल 40% ऑफ एक्सपोर्ट एंड 25% ऑफ इम्पोर्ट, तो दैट इज़ गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड. सेकंड, इट हैज़ टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स. टाइम भी बढ़ रहा है और पैसा भी बढ़ रहा है जितना लग रहा है. फॉर एग्जांपल प्रीमियम जो है, प्रीमियम इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम भरा जाता है, जो भी आपके शिप कैरेजेस वगैरह जाता है, इट हैज़ ऑलमोस्ट गॉन 5 टाइम्स ऐसा हो गया. पहले 2% लगता था, अब 10% लग रहा है. फ्लाइट चार्जेस आपके बढ़ गए हैं, इट हैज़ इंक्रीज बाय 150%. अब आपकी जो फ्लाइट्स वगैरह है उसको केप ऑफ गुड होप से होके जाना पड़ रहा है, रेड सी से सुएज कैनल से नहीं जा सकते हैं, तो ये इशू आ रहा है. और अब कोई भी इशू आता है ना, तो इश्यूज़ को आप मतलब डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स में क्या इशू है. फॉर एग्जांपल जो टाइट मार्जिन सेक्टर्स हैं ना, इन पे क्या इशू होगा? टाइट मार्जिन सेक्टर्स पे क्या होगा? एक तो भैया इनकी ना, पहला तो इनका प्रॉफिट जो है वो घट जाएगा, उसके अलावा उनका जो कैपिटल वर्किंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा. ये 2 चीज़ें होगी. इसकी वजह से इनको मार्केट से क्या लेना पड़ेगा? डेप्ट लेना पड़ेगा, ये बढ़ जाएगा. ठीक है, इसकी वजह से इनकी जो बैलेंस शीट है ना वो हो जाएगी ख़राब. ठीक है, इसकी वजह से इन कंपनीज़ की रेटिंग भी हो सकती है ख़राब, और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी जो है इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, इन सब की तरफ भी जा सकती है. बट ये तो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम केस में हो गया, बट ये होता है. अब ये कौन सी होती है? थिन मार्जिन सेक्टर अपनी आयरन इंडस्ट्री होगी, स्टील इंडस्ट्री होगी, MSMEs वगैरह होगी, ये सब होगी. अब हमने क्या लिखा है? दे विल हैव टू बोरो मोर
टू कंपनसेट फॉर द सेम आयरन स्टील इंडस्ट्री MSME, ठीक है। इम्पैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, इंपोर्ट करके इन्फ्लेशन आ रहा है इस केस में, क्योंकि जो चीज़ें हमें मंगानी है वो महंगी हो जाएगी। लेस डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डिस्कस कर लिया हमने। इम्पैक्ट ऑन ऑयल प्राइजेस, व्हाट द इम्पैक्ट ऑन ऑयल प्राइजेस। ऑयल प्राइजेस के केस में अब क्या हो रहा है, द ऑयल प्राइजेस आर ऑलरेडी सर्जिंग नाउ, दे आर गोइंग मोर देन 80 पर बैरल, $80 पर बैरल, 120 तक भी पहुंच गया था पहले। अब ऑयल की कीमत अगर बढ़ेगी तो इंडिया के लिए क्या दिक्कत है, पहला तो इंपोर्ट कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस इम्पैक्ट्स इंडियाज़ फिस्कल डेफिसिट, आपका फिस्कल डेफिसिट भी है बढ़ जाता। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कैपेक्स है कैपेक्स कम हो जाएगा, बिकॉज यू विल हैव लेस मनी फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिस्कल डेफिसिट हमने देख लिया। इसके अलावा आपका डेब्ट टू GDP रेशियो, ये भी इस केस में बढ़ जाता है। इंडिया का डेब्ट टू GDP रेशियो अभी कितना है, अराउंड शायद स्टार मार्क करना पड़ेगा 80 से 90% के बीच में है। चाइना का कितना है, चाइना का 280% है सीधा अभी, ठीक है। तो ये सारे इम्पैक्ट होता है। फिर आपका इसके अलावा कौन सा इम्पैक्ट है, आपका एनर्जी सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट है, ठीक है। इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो कितने दिन का है, अपने पास सिर्फ 9 दिन का है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अगर आपको इसका पार्ट बनना है तो उसके लिए कितना चाहिए, 90 दिन का चाहिए, ये हमने पढ़ा था रिसेंटली, ठीक है। क्या है, अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ चाइना। अब चाइना में क्या हो रहा है, चाइना के लिए अपने को क्या याद रखना है, पहले तो चाइना का ग्रोथ रेट है ना वो रिलेटिवली इंप्रूव हो गया। इन 2023 द ग्रोथ रेट ऑफ चाइना इज़ 5.2% एज कम्पेयर टू 2022 व्हेन द ग्रोथ रेट वाज जस्ट 3%। आगे बट दिस रिकवरी हैज़ बिन पैची, पैची का मतलब दिस रिकवरी हैज़ बीन डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। चाइना में मेन जो क्राइसिस चल रहा है अभी प्रॉपर्टी क्राइसिस चल रहा है, दिस इम्पॉर्टेंट, जो अभी रिसेंटली एवरग्रांड का क्राइसिस हुआ है। अब चाइना में क्या हुआ है कि हाउसिंग इन्वेंट्रीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और उतना डिमांड है नहीं, ठीक है। और इन्होंने जो रियल एस्टेट सेक्टर इन सब में क्या घपले भी बहुत किए थे, जैसे अपने यहाँ सत्यम वगैरह इन सब में चलता था ना कि बैलेंस शीट्स को इन्फ्लेट कर दिया और दिखा दिया कि हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पैसा है, बट एक्चुअली में पैसा नहीं था। तो ये तो चाइनीज़ गवर्नमेंट हैड ऑल्सो स्टार्टेड क्रैक डाउन ऑन ऑल द रियल एस्टेट all the real estate players who were working or who were trying to do these kinds of manipulation. अब क्या हुआ, there have been certain restrictions that are put that these real estate companies will be able to borrow from the market only in case where certain qualifications they are met. For example, the debt to GDP ratio is met by these firms. आगे एवरग्रांड का फॉल हमने देखा रिसेंटली, कंपनी नेम्ड एज एवरग्रांड, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट मार्केट प्लेयर्स इन चाइना। आई थिंक इट हैज़ नाउ रिसेंटली फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आपका गिर जाता है तो लोग वैसे नहीं खरीदता। डिफ्लेशन जैसा इशू चाइना में अभी हो गया है, बट दैट इज़ पीपल आर स्पेंडिंग लेस, दैट इज़ डिमांड इज़ लेस देन द सप्लाई। डेट का इशू है चाइना में मेजर, दैट 280% ऑफ GDP है डेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो ये इट्स काइंड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स अनसस्टेनेबल लेवल। आगे क्या, हाँ, मूडी जो है, मूडी जो रेटिंग वगैरह की जो एजेंसीज होती है, इट हैज़ नाउ चेंज द आउटलुक ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव, ठीक है। इम्पैक्ट क्या होगा, ग्लोबल इकोनॉमी पे आएगा, बिकॉज ऑल द इंटरनेशनल नेशंस आर इन वन वे और द अदर डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमी ऑफ चाइना, रॉ मटेरियल्स के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए, इंपोर्ट्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सप्लाई चेन के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। अब इंडिया क्या कर सकता है इस केस में, व्हेन वी हैव सीन द कंटेक्स्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस दैट आर एग्जिस्टिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, तो इंडिया ये ट्राई कर सकता है कि इंडिया ट्राइज टू इम्प्रूव इट्स ओन मैक्रो पैरामीटर्स। अब मैक्रो पैरामीटर्स में क्या आ जाएगा, एक तो हमें अपना डेब्ट टू GDP है, डेब्ट टू GDP रेशियो, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, कम इन द सेंस सस्टेनेबल करना पड़ेगा, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा फिस्कल डेफिसिट हमें ठीक करना पड़ेगा। तीसरा ऑयल जो डिपेंडेंस है अपना एक्सटर्नल नेशंस पे उसे कम करना पड़ेगा। चौथा हमारा जो इंपोर्ट है उसे हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, चाइना वगैरह पे डिपेंडेंस कम करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है उसे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए अपना PLI हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, गति शक्ति करके जो प्लान आया था अपना सिंक इस्टेब्लिश करने के लिए,
to establish a kind of coordination between various agencies that are existing. तो ये सारी चीज़ें हो गई. इसके अलावा लिमिट ऑफ इंडिया स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस क्या है, ये फ्रेजाइल 5 का कॉन्सेप्ट कुछ देखना पड़ेगा. ये लिखा था कि 2012-13 के अराउंड कुछ इकोनॉमिक्स थी, 5 इकोनॉमिक्स थी, दे वर कंसिडर्ड एज फ्रेजाइल 5. इंडिया वाज आल्सो वन ऑफ दोज. आई थिंक स्टार मार्क कर लिया, वी आर नॉट श्योर. आगे इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दैट वी सॉ, डेफिसिट रिड्यूस करना है, इन्फ्लेशन रिड्यूस करना है, ये सब ठीक है. अब जीएसटी में ज़्यादा पैसा है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो आपका जो टैक्स बेस है उसको आप ब्रॉडन कर सकते हो, पहली चीज़. दूसरा, आप जीएसटी के जो रेट्स है उसको रेशनलाइज कर सकते हो, ये 2 चीज़. इसके अलावा जो चीज़ें जीएसटी के अंदर नहीं आ रही है एट प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोलियम वगैरह, दे कैन बी ब्रॉट इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी. ये 3 चीज़ें होगी. इसके अलावा आप टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हो टू चेक जीएसटी इवेजन. फॉर एग्जांपल जैसे ऑटोमेटेड टैक्स इनवॉइस मैचिंग आप कर सकते हो, उसके बाद ही आप रिफंड्स वगैरह इशू कर सकते हो. इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स यूज़ करके वी कैन फाइंड फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशंस पहला, एंड द पैटर्न ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट आर हैपनिंग अक्रॉस वेरियस प्लेसेस. तो पैटर्न ऑफ ट्रांजेक्शन से ये पता चल जाता है कि व्हाट शुड हैव बीन द जीएसटी अमाउंट दैट शुड हैव कम फ्रॉम दैट प्लेस एंड व्हाट इज़ द एक्चुअल अमाउंट दैट हैज़ कम. तो डेटा एनालिटिक्स से हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, रिस्क प्रोफाइलिंग वगैरह कर सकते हैं. तो इन दिस वे इट बिकम्स क्वाइट बेनिफिशियल. तो इतना कंटेंट था इस वाले सेशन में. तो आई थिंक वी हैव अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ द macro parameters across the world they are functioning. I think this much is going to be more than enough. तो एंड करते हैं इसे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.